So let's start a new lecture, lecture number 1, which is from the new chapter units and measurement. हम लोग ये NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ कर रहे हैं. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया फिज़िकल वर्ड. वी हैव कवर्ड अप द चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ड फुली इन 4 लेक्चर्स. अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. NCERT देखेंगे हम लोग. ठीक है, तो आज का जो हमारा स्कोप है विल ट्राई टू कवर अप. I'll show you from what page to what page we are going to cover up. So here we are going to cover up this introduction देखेंगे. इसमें mainly we are going to study measurements क्या होती हैं, why do we need the measurement, units देखेंगे, what are fundamentals and fundamental base and the derived units, what is a physical quantity, then we are going to see the system of units, कौन कौन से system of units है हमारे. Then we are going to see why there is a problem in MKS unit, why we have to switch to another coherent system of unit which is called SI units. उसके बाद हम लोग देखेंगे SI units कौन कौन सी होती हैं, what are the base SI units we are having. ठीक है, and why do we have this base and the derived units, that also we are going to see. और we are not going to see कि कैसे derive हुई हैं, but we are going to see कि जितने भी base units हैं what is the principle behind them, why they have selected and how they have linked with the constant. ठीक है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के साथ सबको लिंक कर दिया which was not there in the earlier SI units. ठीक है, तो हम देखेंगे कि this thing and then some practical units which is still been retained that we are going to see. ठीक है, ये करने के बाद we will see some units देखेंगे हम लोग which are directly based on SI units. We will see some units which are not which are based which will be which will be present in the SI units. Apart from that some units we have given some special names like Newton, Joule, Pascal. So we are going to see them. This is just we are going to skim through, we are not going to deep into it. उसकी जो derivation वगैरह या उसका एग्जाम या उसका फॉर्मूला वगैरह वी आर गोइंग टू गो एंड स्टार्टेड लिंकिंग व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द डायमेंशन एनालिसिस. बट यहाँ पे हम लोग जस्ट देखेंगे वो कि हाउ दे आर राइटिंग डाउन द यूनिट्स एंड ऑल, एंड इफ देयर इज़ अ name in the unit and how they are writing the name in the unit, and name or particular SI units also they can club up and make up the units. We'll just see the flavor of units, किस किस तरीके से unit को present किया जाता है. Then here we are going to see the measurement of length. First we'll see what is measurement, and from there we'll get into the मेजरमेंट. और मेजरमेंट में भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे लेंथ का मेजरमेंट. लेंथ का मेजरमेंट बेसिकली विल सी विद द डायरेक्ट मेथड्स. डायरेक्ट मेथड में विल जस्ट स्किम थ्रू वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. अगर आपको इसका डिटेल देखना है, इट इज़ ऑलरेडी बीन देयर इन माय लेक्चर सीरीज़ विच इज़ गोइंग ऑन 300 लेक्चर सीरीज़. उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता रखा है. बट हेयर वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू द बेसिक कि क्या होता है वर्नियर कैलिपर, क्या उसका मिनिमम रेजोल्यूशन होता है, और क्यों और किस तरीके से वर्नियर कैलिपर इज़ डूइंग द रीडिंग्स. ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग्स भी देखेंगे एक एक एग्जांपल के थ्रू, सेम वे स्क्रू गेज के थ्रू. ठीक है, फिर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस दैट वी आर गोइंग टू सी थ्रू पैरेलैक्स मेथड. ठीक है, पैरेलैक्स मेथड के थ्रू देखेंगे, एंड देन विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस. पैरेलैक्स मेथड के बेसिस पे विल सी टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार, विल फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ अ मून. So we'll see those things. ठीक है, so that is the scope for today's lecture. So this thing from the NCERT we are going to cover up today. Okay, so जैसा कि मैंने कहा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेजरमेंट है क्या, वाई मेजरमेंट इज़ रिक्वायर एंड व्हाट इज़ मेजरमेंट. देन वी आर गोइंग टू सी कि मेजरमेंट इज़ लिंक्ड, जो मेजरमेंट के प्रोसेस में होता है, यू नीड सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच वी कॉल यूनिट्स, और यूनिट्स भी देन वी आर गोइंग to have a two set of units, base and derived units, or base maybe there is one more then there is a system of units that we are going to see what are those system units. और फिर measurement of length देखेंगे कि in the direct method we do it with meter scale, then उसको और resolution के साथ, अगर मेरे को और resolution चाहिए उसमें then we do it with vernier scale. अगर मेरे को further resolution चाहिए then I do it with screw gauge. और फिर हम एक measurement of large distances देखेंगे through the parallax method, और हम देखेंगे parallax method है क्या. ठीक है, so this is the scope for lecture number 1 today. So let's start. So we'll start with this कि अगर suppose for instance if this block is there and you are pushing this block. ठीक है, you are pushing this block here, you push this block, and after some time the block is covered some the block is here now what is this sum I am telling. Okay, I push something and from that it got to some distance, and that some distance is there. ठीक है, so now I'm talking everything in the vague terms. ठीक है, मैं sum लगा रहा हूँ, I'm not talking anything precise कि मैंने कितनी फोर्स लगाई, कितने मीटर ये गया. I'm just talking the
द वेग टर्म्स, और ये पुश किस में अगर ये प्रिसाइज नहीं होगा तो ये पुश मे बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, इट विल बी सब्जेक्टिव। किसी के लिए पुश बहुत ज़्यादा, कई बोलेगा कि अगर इसमें मैंने पुश लगाया और ये मतलब फॉर इंस्टेंस ये बहुत दूर चला गया, तो ये वो कहेंगे बहुत बड़ा पुश है। और बहुत बड़ा दूर भी देन कितना दूर गया, बहुत ज़्यादा दूर गया, ये ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा फोर्स कम फोर्स, ये सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द वेग टर्म्स। दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू टू द प्रिसाइज थिंग्स। ये सारी वेग टर्म्स हैं कि ये ज़्यादा ये बिकॉज फॉर अ स्मॉल पर्सन ये से कि बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, फॉर अ बिग पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत बड़ा है उसके लिए कहेगा तो छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो देन अगेन इट इज़ नॉट मेकिंग यू टू द प्रिसाइज वे, इट इज़ जस्ट मेकिंग इन टू द वेग वे, it is just the vague way of representing the thing. But physics is not that. Physics is an exact and a precise science. Physics is exact and a precise science. You need to answer each and everything in the precise manner, and then only you could able to predict, control and modify. That is what we have studied now. The physics is nothing but a systematic way of studying the natural phenomena or the phenomena which is going around you, or that systematic way requires to get the precise knowledge of what is going to happen, how you're going to predict, and how you're going to control. So all these things require, but that requires everything with a precision, ठीक है। and for that precision physics में जितने भी मेरे phenomena होते हैं, whatever the phenomena it is happening in the physics, that has been linked with some physical quantity. Like suppose for instance हमने इसी phenomena में देखा कि you apply one thing and it is moving up to this distance, तो you apply one phenomena, so there is one phenomena which has been linked with another phenomena कि ये कितना मूव किया, ठीक है। आपने यहाँ पे पुश किया, that is one phenomena, और ये कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक, that is another phenomena. So these phenomena are interlinked in physics. सारे phenomena these are linked with the physics, and they are linked with the physics which we call, their linkages are the physical quantity. किससे लिंक है, these are the physical quantities, ठीक है। So जैसे कि आप जानते हो दिस पुश एंड पुल इज़ नथिंग बट फोर्स एंड दिस डिस्टेंस इट इज़ मूव्ड एल। सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट कि मैंने इतना पुश किया इस पर और ये इतना डिस्टेंस मूव किया, देन यू आर सेइंग कि इट इज़ गोइंग टू प्रिसाइज। अगर आप प्रिसाइज बताओगे कि मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड इट मूव 10 मीटर, देन इट इज़ गोइंग टू गेट प्रिसाइज थिंग, ठीक है। हमें उस लेवल पे आना है प्रिसाइज के, तो उस लेवल पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस कि कितना मूव किया और कितना पुश करा है, ठीक है। यू नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप, देन ओनली यू कुड एबल टू रीच कि आपने कितना फोर्स लगाया और आप कितने डिस्टेंस गए। सो दैट रिलेशनशिप, दोज रिलेशनशिप्स आर देयर, इज दैट यू डिराइव इट, दैट यू डिस्कवर इट इन द प्रोसेस, द सिस्टमेटिक प्रोसेस, दैट इज़ व्हाट इट इज़ द फिजिक्स। कि फिजिक्स में लॉज होते हैं, in that you observe those laws, from that laws you derive a qualitative analysis of that, and then you do experimentation. On that basis you derive qualitative analysis, then you also do the quantitative analysis, and then you bring up the mathematical framework, ठीक है। जैसे कि न्यूटन्स का लॉ है कि ये सीन द एप्पल फॉलिंग, इट इज़ एप्पल फॉलिंग का मतलब कि वन वे इज़ टू सी इट क्वालिटेटिवली, ओके नीचे गिर रहा है, सम फोर्स इज पुशिंग, बट कितनी एग्जैक्ट फोर्स है, क्या प्रिसाइज फोर्स है, देन फॉर दैट यू नीड सम रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड बिटवीन हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग, यू नीड सम रिलेशनशिप, और वो मास के साथ उसकी रिलेशनशिप, ज़्यादा मास है कम मास का है, यू नीड ऑल दोज रिलेशनशिप। सो यू नीड अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, सो दैट मैथमेटिकल फ्रेमवर्क इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक फॉर इंस्टेंस द न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू ma, so here F is a physical quantity, M is a physical quantity, A is a physical quantity. Now again another questions, what is this physical quantity? Physical quantity in any physical phenomena, if you could able to measure some quantity, then you can say it is a physical quantity. If you can't measure the quantity, it is not a physical, it is a non-physical quantity. For instance, if it's a length you can measure, the mass, time, ठीक है, all those things you can measure in the phenomena. But what about the love, anger, beauty, justice? These are intangible things, these are abstract things, these are qualitative things. So the qualitative, intangible, abstract thing, you could not able to measure them because it is subjective to each and everyone, it varies with each and everyone. So these are the qualitative things, so you cannot measure them, so these are not the physical quantities, ठीक है। We are talking about the physical quantities whenever we are deducing our relationship in terms of physical quantities. So there we are telling about the quantities where we can do the measurement, ठीक है। So here if we see in this equation, F is a physical quantity, M is a physical quantity, A is a physical quantity, because you can measure all those things. So physical quantity means that can be measured, and that is a quantitative value, ठीक है। That is one thing in the physical quantity. Now you know okay, there is a relationship, suppose A is equal to B into C, ठीक है, that is a physical relationship, that is A is a phenomena which is depending upon B and C, ठीक है। Now you wanted to know what is going to happen to be after some time, ठीक है। So for that you need to know the value of
value of b and the value of c if you precisely wants to know a. ठीक है, so now to know that value, that is what the process of measurement. Okay, how you are going to know this value, how you are going to know the value of c. Now there it required the measurement. Okay, how you are going to measure the b, how you are going to measure the c, so that you can measure the exact value of a. So these physical quantities, they are mathematically related they are mathematically related. All this natural phenomena, somehow they are they can be put into the mathematical framework. So that is what the physics in terms of, that is how you are going to discover the physics. Once you put it in the mathematical formula and you make it a law. Now for here f is equal to ma, आपको m को कैलकुलेट करना पड़ेगा, a को कैलकुलेट करना पड़ेगा. m को कैलकुलेट कैसे करोगे आप? How do you calculate the value of mass? Because if this is a mass, for some people it can be a small mass, for some people it can be a big mass. So the measurement is the first step if you wanted to enter into the physics. ठीक है, physics is a quantified way of telling something what is the reason behind it. ठीक है, physics is not like a descriptive way कि एक के लिए physics कुछ और है और दूसरे के लिए physics कुछ और है. physics की जो preciseness देता है वो उसकी measurement देती है. तो अगर measurement नहीं कर पा रहे हो आप तो physics नहीं कर रहे हो. तो measurement कर रहे हो आप, that means that is the fundamental point of entry into the physics if you are doing the measurement. So that's why measurement is one of the most important thing. That is the foundation of physics. ठीक है, तो which can quantify the physics. Otherwise physics is nothing but just like a philosophy. ठीक है, उसको quantify करता है, that is the measurement. ठीक है, that whatever you are observing, okay, suppose you see के the weather is hot today, so that is again hot, cold, this is all are the subjective thing. ठीक है, so इसको quantify किया आपने बताया weather is 50 degrees Celsius, you have quantified this thing. ठीक है, so that is what you say के okay, that is what it's a measurement. ठीक है, so measure अब ये कैसे measure किया आपने 50 डिग्री सेल्सियस. so there must be some process for it. So what is the measuring process? क्या process होता है measuring का? To determine the value of physical quantity, like here mass है, mass की physical to determine the value of this physical quantity या acceleration की this physical quantity comparing with the standard unit. ठीक है, किसी standard unit से आप compare कर रहे हो. For instance अगर मेरे को ये mass of length चाहिए, ठीक है, mass of this rod चाहिए, this rod है, इसका मेरे को mass चाहिए और आपके पास standard unit है ये वाली. ठीक है, so now you have to how much you have to do 1 2 3 4. when you do 4 times of this rod का multiplication, ये unit rod है आपकी, this is your unit quantity. ठीक है, this is your standard unit. आप जितनी भी length measure करेंगे इसी के through measure करेंगे. तो now you can say 4 times of this standard quantity. So this is your how you are going to measure the length. Same way the mass is there, कुछ एक standard quantity है, कितने times of that standard quantity है, that is going to give you the mass. ठीक है, so the measurement is having, it's a process of comparing the physical quantity with respect to your standard quantity. ठीक है, it is a process of determining the value of physical quantity by comparing it with the standard quantity. Now the standard quantity is again a next challenge which is going to come, because earlier times there was no mode of communication, हर कोई अपनी तरीके से measure करता था. So there was lot of there is no universality into it. So one of the fundamental thing is to bring the uniformity in the communication, because physics हर जगह same रहेगी. अगर आपने measurement अलग अलग तरीके से करने लगे आप measurement, so then obviously आपके phenomena में differences आएंगे and you could not able to reach the universality. तो universality तभी reach करेगी when you know the fundamental, when for each and every one you follow the same unit. अगर हर कोई अगर इस rod की value measure करनी है and some people are using this as a standard quantity, some people are using this as a standard quantity, then this people will say it is 4 times of the our standard quantity, suppose A, and these people will say no, it is 2 times of our standard quantity B. So that is going to create a lot of confusion, chaos create कर देगा, and that is not going to make the physics precise. So for that another challenge came is to make the standard quantity. ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनानी. पहले के टाइम पे क्या होता था, हैंड स्पैन से मेजर करते थे. ठीक है, योर क्यूबिट, यहाँ से नीज, यहाँ से आपकी एल्बो से लेकर हाथ तक का लेंथ से मेजर करते थे कि इतनी लेंथ है कि अगर मेरे को मेजर करनी है लेंथ की, सो दैट्स हाउ यू मेजर. आर्म स्पैन की मेजर से, फुट स्पैन की मेजर से, पेस की मेजर से. सो दीज वर ऑल द ओल्ड वेज दैट फ्रॉम विच यू आर मेजरिंग द लेंथ. बट दीज आर अगेन डिपेंडिंग ऑन के पर्सन टू पर्सन. किसी का हैंड बड़ा है तो उसकी कम लेंथ आ जाएगी, किसी का क्यूबिट छोटा है उसकी ज़्यादा लेंथ आ जाएगी. सो दिस अगेन इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ केओस. देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन इनटू इट, देयर इज़ नो यूनिवर्सैलिटी इनटू इट. सो इट चेंजेस फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन. सो वी हैव टू मेक अ यूनिट which is a standardized one. So that is the next challenge. We have to make something which is standardized one. So that is what we are going to do. ठीक है, with the unit, that is one of the
थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। देन अनदर चैलेंज आया कि भाई हमारी तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ही बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर हम मैकेनिक्स में देखें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें, मैग्नेटिक्स में देखें, हम हीट वाले में देखें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो हमारी तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी आ जाएंगी। अगर हर किसी को एक एक यूनिट से डिफाइन करेंगे तो हमारी तो कितनी सारी यूनिट्स आ जाएंगी, देन हाउ यू विल रीच। बट फिजिक्स में एक जो जैसे कहते हैं ना ब्यूटी है कि वो यूनिवर्सैलिटी, कि वो कम चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, हम लोग केवल 7 यूनिट से हम लोग सारी यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। केवल हमें 7 यूनिट चाहिए, उन 7 यूनिट के बेसिस पे हम 7 फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे, और सारी जितनी भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दोज 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और हमें बस यूनिट चाहिए होगा फॉर दैट 7, वी नीड द 7 यूनिट्स फॉर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी से वी कैन हैव द ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन द फिजिक्स। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। केवल इस 7 बेस यूनिट से यू कैन डिराइव ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़, सो यू जस्ट नीड द 7 यूनिट्स फॉर दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कम चीज़ों में यू कैन एक्सप्रेस लॉट ऑफ फिनोमिना, ठीक है। सो नाउ मेजरमेंट हमने देखा, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस कि वहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इनटू उसकी कितनी 1 यूनिट की कितनी वैल्यू है। सो 2 मीटर हो गया, सो मीटर हो गया मेरा, इट्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट, और 2 हो गया कि 2 टाइम्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड यूनिट। सो मेजरमेंट कितनी होती है, n इंटू यू। अगर मेरी यूनिट बड़ी हो गई तो मेरा n छोटा हो जाएगा फॉर द सेम क्वांटिटी, अगर मेरी यूनिट छोटी हो गई तो मेरा n बढ़ जाएगा फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है। अनदर थिंग इज दिस यूनिट शुड बी precise and universal so that it can be easily compared, ठीक है। So another next slide we are going to see कि what are the fundamental requirement for the units, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया मेरा, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चोजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अगर मेरी यूनिट की क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटी है, सो विल टेक द लेंथ की स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड वी कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द लेंथ ओनली, ठीक है। मास की है तो मास की फिजिकल मास की यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी लूँगा जिससे मैं के सेम मास को ही मेजर कर पाऊँगा। बट 7 मेरे को केवल फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, उनकी यूनिट चाहिए, आई कैन मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम दोज 7 यूनिट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दोज 7 यूनिट्स, ठीक है। सो वील सी कि ये जो फंडामेंटल बेस यूनिट्स होती हैं वो 7 यूनिट्स होती हैं, जिससे मेरी 7 फिजिकल क्वांटिटी की चाहिए होती है और जिससे मैं सारी यूनिट्स डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। एंड दे आर इंटर रिलेटेड सो दैट वी कैन यूज़ द डिराइव्ड यूनिट। एंड नाउ दिस यूनिट एंड द बेस ऑफ यूनिट एंड द डिराइव यूनिट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। जो मेरी बेस यूनिट हो गई, जो हम देखेंगे अभी, हमारी 7 बेस यूनिट है प्लस उस, और जो डिराइव्ड यूनिट्स हो गई ये सारी उन 7 बेस यूनिट्स है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले तक हम लोग फॉलो करते थे सिस्टम ऑफ यूनिट, स्टार्टिंग में CGS सिस्टम ऑफ यूनिट होता था जिसे हम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहते थे, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। देन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द FPS सिस्टम where we started calling it a foot, pound and second। foot जैसे आज की टर्म्स में देखो, foot is nothing but 0.304 meter and kilogram is 0.45, sorry, pound is 0.454 kilogram. So this is what we are using, but the problem with this unit was it is not a metric system, so we need to have a metric system where we can अगर किसी smaller unit को करना है या ज़्यादा मेरा numeric value है, so I can have the multiples of 10, ठीक है। So that's why we never adopted, so it was there only in the UK, it was never been adopted universally। देन केम द MKS यूनिट, यहाँ पे हम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बट MKS यूनिट इज़ ओनली गिव्स द फिजिकल क्वांटिटी इन योर मैकेनिक्स, ठीक है। थर्मल क्वांटिटीज़ और आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, मैग्नेटिक क्वांटिटीज़, उन सबको नहीं दे पाती है MKS सिस्टम। सो वी नीड अ सिस्टम के जहाँ से मेरा सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएँ, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी नीड्स टू बी कवर। सो देन वी हैव द later on then the SI system of units. SI system of units, we have adopted this. Here we, in the SI system of units, we will be having the 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिससे हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिराइव कर लेंगे उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, जिनकी हम 7 फंडामेंटल यूनिट लेते हैं, ठीक है। उससे हम सारी निकाल लेंगे, सारी यूनिट्स निकाल लेंगे, सारी डिराइव यूनिट्स, ठीक है। और 2 हमारी इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब यूनिट जो है उसकी मेजर मेरी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड। कन्वीनियंट इज साइज़, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो। तो बहुत छोटा होगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप बहुत छोटी यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो इट शुड बी कि
आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में कवर अप कर जाए। ऐसा नहीं होगा, कुछ एक केसेस तो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस के होते हैं, इफ़ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम लाइक कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर आप मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे बड़ा आएगा, बट दैट इज़ लाइक एक्सट्रीम। माइक्रो और मैक्रो, अगर आप सुपर मैक्रो में कॉस्मो लेवल पे जाओगे दैट इज़ द एक्सट्रीम लेवल, बट मेजर फिनोमिना जो आपका होना चाहिए वो आपके एक ऐसा साइज कंसिडर करना है जो कवर अप कर जाए, ठीक है। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट एंड इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। हर एक कंट्री उसको आराम से बना ले। इट शुड बी इम्पेरिशेबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर के साथ इट शुड नॉट वेरी। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एंड एक्सेसिबल, ठीक है। सो राइट नाउ SI यूनिट इज माई सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ बीन फॉलोड एवरीवेयर एंड इन दिस बुक ऑल्सो, और इन द फिजिक्स दैट वी आर स्टडिंग वी आर यूजिंग द SI यूनिट्स। सो अगर द प्रॉब्लम विच वी हैव सीन कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, और बट एक अच्छी चीज़ है, दे आर इंटर रिलेटेड। सो यू जस्ट नीड 7 फंडामेंटल यूनिट्स टू डिफाइन दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स, जिनसे आप सारी की सारी फिजिक्स की क्वांटिटीज़ डिराइव कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस वेलोसिटी है, वेलोसिटी की को आप दो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस की क्या होगी हमारी फंडामेंटल यूनिट, लेंथ, ठीक है, और ये टाइम की हो गई सेकेंड, ठीक है। सो जितनी भी डिराइव्ड यूनिट होंगी, सो दीज आर ऑल द डिराइव्ड यूनिट, लाइक फोर्स आपकी डिराइव्ड यूनिट है, एक्सीलरेशन आपकी डिराइव्ड यूनिट है, दैट यू कैन डिराइव विद दो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या क्या 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब क्या है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्या होते हैं मेरे के सेट ऑफ यूनिट्स टू बी मेजर। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे 7 सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स, पर डिराइव्ड यूनिट्स उनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल और डिराइव्ड हैं उनकी यूनिट्स को वी कॉल अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वी हैव सीन CGS, FPS, MKS। तो अब हम जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ SI सिस्टम। फ़ायदा क्या है उसमें, कोहेरेंट है, ठीक है, कि सारी मेरी जो बेस यूनिट है इट कैन बी जो मेरी जो डिराइव्ड यूनिट है इट कैन बी डिराइव फ्रॉम द बेस यूनिट बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऐसा नहीं है उसमें कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशन है। लाइक फॉर इंस्टेंस अर्लियर क्या होता था ना MKS सिस्टम में 1 कैलोरी इज़ 4.2 टाइम्स ऑफ जूल, तो ये न्यूमेरिक नंबर आ जाता था। दैट न्यूमेरिक नंबर इज़ नॉट देयर इन आवर SI सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज़ जस्ट कोहेरेंट, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से यू कैन गेट ऑल द डिराइव्ड यूनिट। अगेन द राशनल इज़ कि पहले जो हमारा MKS यूनिट था उसमें एनर्जी की डिफरेंट यूनिट्स थी। जूल थी हमारी मैकेनिकल में, वॉट आवर थी मेरी इलेक्ट्रिकल में, एंड देन कैलोरी थी मेरी हीट में। तो डिफरेंट फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी के लिए मेरी डिफरेंट यूनिट हुआ करती थी। सो दैट वाज क्वाइट इरेशनल। सो अब ऐसा यूनिट है उन सब के लिए, एनर्जी के लिए सेम यूनिट है जूल, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मेरी मैकेनिकल एनर्जी हो, सबके लिए जो एनर्जी की एक सिंपल यूनिट है दैट इज़ अ जूल, ठीक है। देन इट इज़ अ मेट्रिक बेस्ड सिस्टम के वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द 10 ऑफ बेस ऑफ 10। देन हेयर SI यूनिट वी हैव 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। बेस यूनिट नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। पहले 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, दैट इज़ माई प्लेन एंगल एंड माई सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है मेरा, सिंपल 2D में जो मेरा एंगल बनता है, सपोज दिस इज माई आर्क, सो सिंपल 2D में जो एंगल बनता है, सो दैट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है मेरा, d थीटा इज इक्वल टू ds बाई रेडियस, ठीक है। सो दैट इज़ माई प्लेन एंगल। सो उसकी यूनिट क्या होती है मेरी, दिस इज़ व्हाट वी एक्सप्लेन इट थ्रू रेडियन, ठीक है। तो 2D की यूनिट होती है मेरी प्लेन एंगल की रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होता है कि दैट स्फेयर के जो सेंटर पे अगर आप ये निकालेंगे इस सरफेस एरिया से, सो ये जो एक 3D एंगल बनेगा या ये कोन के लेटरल सरफेस को जो कवर अप कर रहा है ये एंगल, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ 3D एंगल और अ सॉलिड एंगल, ठीक है। सो इसकी क्या यूनिट होती है मेरी, स्टेरेडियन। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज आई हैव टू दिस इज ओमेगा। सो ओमेगा अगर मेरे को निकालना है दैट इज़ नथिंग बट माई ये जो स्मॉल एरिया सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय यहाँ से ये अगर ये r है सो दैट विल बी r², ठीक है। सो दैट इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द सॉलिड एंगल। और जो मेरा प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल इज़ माई थीटा इज इक्वल टू माई आर्क ओवर रेडियस। और सॉलिड एंगल अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ माई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट सॉलिड एंगल एंड योर प्लेन एंगल। सो दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के इसकी जो मेरी यूनिट होती है रेडियन, इसकी होती है मेरी स्टेरेडियन, ठीक है। सो ये हमारे सॉलिड एंगल हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा पॉइंट सोर्सेस होते हैं। जस्ट सेकेंड,
सॉलिड एंगल हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा पॉइंट सोर्सेस होते हैं, जहाँ से मेरा रेडियली चीज़ कोई निकल रही होती है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, सो दैट इज़ गोइंग रेडियली, ठीक है। सो हमें फ्लक्स निकालना होता है एंड ऑल दोज थिंग्स इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट। और अगर मेरा लाइट सोर्स है, अगर मेरी लाइट यहाँ से जा रही है, सो इट विल बी गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। सो फॉर दोज पर्पसेस वी नीड द सॉलिड एंगल, ठीक है। सो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिक और लाइट वाले केसेस में भी देखेंगे। सो वी हैव सीन दिस सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। अब हम देखते हैं 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी हमारी। 7 बेस यूनिट्स हमारी लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों मेरी जो हो गई मैकेनिकल वाली हो गई, देन इलेक्ट्रिक हो गई, टेम्परेचर हो गई, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया एंड माई ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई। ये मेरी 7 यूनिट से, ठीक है, मेरी 7 फिजिकल क्वांटिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। एंड दिस 7 फिजिकल क्वांटिटी कैन डिराइव ऑल फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, ठीक है। सो अब इसके अंदर आप देखोगे इसका लेंथ की क्या है, मेरा जो सिंबल है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक का देखो, इट इज़ मेंशन विद कैपिटल ए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो इट कम्स फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम एम्पियर, ठीक है। सो अगर आपको फुल नेम लिखना है तो यू विल ऑलवेज राइट इट विद स्मॉल लेटर एम्पियर, ठीक है, या AMP लिखोगे, स्मॉल में लिखोगे। अगर आप केवल फर्स्ट लेटर लिखोगे और किसी के नेम से है वो, तो देन यू विल राइट इट कैपिटल। सो यहाँ पे जो इसकी यूनिट आएगी ए, सेम वे यहाँ पे केल्विन आप देखो फुल में आएगी। मोल आप स्मॉल में लिखोगे, सारी यूनिट्स आप स्मॉल में लिखोगे, एंड कैटिला। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल जो था हमारा कि क्यों हमारे को ये यूनिट्स में कैसे किस तरीके से हमने सोचा, दैट इज़ के टू लिंक ईच एंड एवरी यूनिट विद अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। अर्लियर क्या होता था कि हमने जो हमारा जो मास था दैट वाज रिलेटेड विद अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो देयर इज़ अ क्वाइट अ चांस कि दैट मे गॉट चेंज, ठीक है। अब क्या किया हमने, सारी की सारी यूनिट है, वी हैव लिंक्ड इट विद द कांस्टेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि वो किस कांस्टेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सारी की सारी यूनिट हमारी जो है इट इज़ रिलेटेड विद सम कांस्टेंट। सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। पहली चीज़ के हम लोग यूनिट को लिखते कैसे, अगर कोई नाम है तो वी हैव टू राइट इट इन द कैपिटल, बाकी सारे को हम लोग को स्मॉल में लिखना होता है, ठीक है। अगर आप नाम भी लिख रहे हैं तो नाम को आपको पूरा लिखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू राइट इट विद द स्मॉल, ठीक है। अनदर थिंग इज़ कि ईच एंड एवरी यूनिट इट्स बिन लिंक्ड विद योर यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब हम देखते हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट, यू शुड रिमेंबर दोस यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, किससे वो लिंक्ड अप है, एंड दैट वैल्यू इट इज़ कांस्टेंट ईच एंड एवरीवेयर इन एवरी पॉइंट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। सो नाउ इट इज़ नॉट मैन मेड. Now this our length, how our length has been related, our length is related with the speed of light, ठीक है, that is constant to this value 299,792,458. Then the mass was earlier related with some man-made object. Now our mass is now related with the Planck's constant, ठीक है, that is also universal constant. My time is now related with the vibrational frequency of my cesium atom when it changes the energy state. So that is also a constant, that is a universal constant. When the atoms got a transition in superfine states, in a hyperfine transition in the frequency in the cesium 133 atom, so in that this much is the frequency. So that frequency is a constant. So that is what we are using it to calculate the value of time, ठीक है. So that is what we are using to calculate the value of time. So this is the frequency, means कि एक सेकेंड में this much vibration it is doing, ठीक है, एक सेकेंड में this much vibration it is doing when it is changing, when it is changing from one energy level. So suppose this is one energy level, another energy level, when it is doing a transition from this energy level to this energy level, it is giving a wave, और उस wave it is sending a wave. So उस wavelength की जो उसकी frequency है, that is this frequency, ठीक है, एक सेकेंड में this many times it got it, that is a frequency. Then we have having the electric जो electric base quantity है मेरी, इसके अंदर जो it is linked with the elementary charge particle, that is 1.62 into 10 to the power minus 19. ये elementary charge की unit है, ठीक है. So that is also universal constant. Now thermodynamic temperature जो है मेरा Kelvin, that is now linked with the Boltzmann constant, that is also universal constant. Now the amount of the substance, that is linked with your Avogadro number, ठीक है, that is linked with your Avogadro number. So that is also constant. But whenever you are mentioning the amount of the substance, you need to mention कि क्या elementary quantity है. Is it a electron, is it a proton, or is it so is it an atom? So you have to mention the elementary quantity into it, but it is linked with the Avogadro constant. Avogadro constant के साथ link है. Now the luminous intensity,
Now your luminous intensity, it is linked with your it is linked with the intensity of a monochromatic radiation light which is having this frequency. So this is also constant 683. So this monochromatic radiation of light, say with this frequency, we have got this value. So that is also universal constant. So these are the 7 base units. With this you can these are the 7 base unit which define your 7 physical quantity. 7 physical quantity define कर रही हैं. These are the physical quantity which is being defined by these 7 base unit. और ये 7 physical quantity से you can derive all the physical quantities in the physics. ठीक है. So here we have seen based on the fundamental quantities of nature. Earlier, like for the weight, we were using platinum bar, that was man-made. So now second we are using the atomic clock cesium-133 का vibration, and mass we are using meter we are using the speed of light, kilogram we are using, or mass we are using with the Planck's constant. So it is consistent and a global language of measurement. ठीक है. So this is we have seen it here. ये हो गया. अब हम देखते हैं next we are going to see कि लाइक मेट्रिक सिस्टम में होता है ना पावर ऑफ 10. सो दैट इज़ हाउ इट्स बिन रिलेटेड. सो अगर 10 टू द पावर 1 है तो टेका 10 टू द पावर -1 में रिप्रेजेंट करना है मीटर को और एनी यूनिट को, लाइक मास को, टाइम को. सो हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन 10 टू द पावर. ठीक है. सो अगर 100 किलोग्राम है, सो यू कैन 100 किलोग्राम we are having this kilogram as a unit now. If you are having in terms of this power of 10, how you are going to represent. So if you are having suppose 10 to the power 1 deca, 10 to the power -1 deci. So if you are having 1 meter is there, so 1 meter, how you represent in the centimeter, so it is 100 centimeter. So same way 1 meter you can represent with 1000 meter, 10 to the power 3 meter, 10 to the power 2 meter. ठीक है. बट हेयर सेंटी मीन्स कि ये मतलब सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 टू द पावर ये नीचे आ गया ना, तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा. 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3. सो दिस इज़ यू कैन रिप्रेजेंट इट इन द मीटर. ठीक है. स्केल में यू कैन रिप्रेजेंट इन द मीटर लेंथ में. किलोमीटर करना है आपने, सो 10 टू द पावर 3 मीटर. ठीक है. अगर आपको किलोमीटर में करना है, मेगामीटर हो गया, गीगामीटर हो गया. सो दैट वे यू कैन डू. सो दिस इज़ अ 10 टू द पावर. अगर कम साइड में जा रहे हैं आप उससे स्केल से, अगर आप ज़्यादा साइड में जा रहे हैं, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग, तो देन यू कैन यूज़ दिस. ठीक है. अगर इफ़ यू आर यूजिंग लाइक फॉर इंस्टेंस किलोमीटर इज़ 10 टू द पावर 3, ग्राम आ गया, किलोग्राम को 10 टू द पावर 3. सो दैट वे यू कैन डू. ओके. So these are the power of 10 you can use. So it is quite related: deca, deci, hecto, centi, kilogram, milligram, kilo and milli, not just gram. So here we are having mega, micro, giga, nano. So power, it's all linked also. Tera के साथ pico आता है. So this is now at a atomic level we are reaching, or this is at a cosmological level we are reaching. Here peta 10 to the power 15, femto, exa and atto. So these are the power of 10, right? So next we'll move on. तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम दोस यूनिट वी आर स्टिल फॉलोइंग सर्टेन यूनिट्स इन आर डे टू डे लाइफ. फॉर इंस्टेंस मिनट वी आर यूजिंग, आवर वी आर यूजिंग, डे वी आर यूजिंग, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स. ईयर वी आर यूजिंग, डिग्री वी आर यूजिंग, सो डिग्री यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन बिकॉज रेडियन इज द एसआई यूनिट. लीटर वी आर यूजिंग, टन वी आर यूजिंग, कैरेट वी आर यूजिंग, 200 मिलीग्राम होता है कैरेट. बार एज ए प्रेशर वी आर यूजिंग. क्यूरी एंड रॉन्टगन इज आर रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने की यूनिट होती हैं, दैट also we are using in terms of measuring radioactivity. Quintal for the mass, barn for the area, air for the area, hectare for the area, and standard atmospheric pressure. This is we are using 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. So these are all we are still using as we are still retaining some for the general purposes. Okay, but these are not the SI units. Okay, these are not the SI units, but we are using it for the general purposes, these units. Okay, so remember these are not the SI units. So again, whenever you are measuring this mole quantity, so mole in the last, this quantity, if you are having amount of the substance, so whenever you are measuring this quantity, so elementary entities needs to be mentioned, whether it is an atom, molecule, ions, electron. So you have to mention those quantities.
नाउ वी विल सी के अपेंडिसेस में ये अपेंडिसेस का एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या है, बट कि इसमें हाउ द how the derived units has been how we got the derived unit from the base units, or some units we are representing in terms of their names also, some units we are representing in terms of name plus some other unit. So that we'll see it here. So these are the derived units from the base SI units. For instance, area, volume, acceleration. So these are all the derived units that you can then you can derive it from the main fundamental units. So these are all the fundamental, ठीक है, ampere per meter, ampere per square meter, kilogram per cubic meter. So if you see wave number per meter, so angular acceleration, radian per square. So these are all the base unit. From this base unit, so all this physical quantities that you are deriving, but there are certain derived units where they have the special name. So this frequency is nothing but 1 by time होती है. So you can have this SI unit as second inverse, but frequency का एक name वाला भी unit चलता है, that is what we say hertz. ठीक है, naming वाला भी चलता है, that is what we say hertz. ठीक है, हेयर ऑल्सो इफ़ यू सी नाम है, नाम का अगर हम यूज़ कर रहे हैं 2 इनिशियल, सो वी जस्ट यूज़ कैपिटल 1 स्मॉल. ठीक है, सब में हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं. इफ़ वी आर यूजिंग द नेम, फोर्स में हम लोग न्यूटन यूज़ करते हैं, एंड प्रेशर में पास्कल यूज़ कर देते हैं, एनर्जी में जूल यूज़ करते हैं. दीज आर थ्रू द नेम ओनली. वॉट, डब्ल्यू यूज़ करते हैं, कूलम, वोल्ट. सो दीज आर द नेम्स ओनली. ओम, सीमेंस, वेबर, टेस्ला, हेनरी, and this is not the name, so we are not using it in the capital. Lux, lumen, but they are having the special name, but it is not the name of the person. Then the becquerel and the gray, ठीक है. So that's how you will represent with some special symbol. That also you can represent in the units, but उनकी जो SI unit है, these are the SI unit of them. ठीक है, but in this is also you can use. So इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. जैसे अगर आपको ये यूनिट लिखनी है, इफ़ यू वांटेड टू राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आप सिंपल जूल भी लिख सकते हो. यू कैन राइट द एनर्जी यूनिट एज जूल. यू कैन राइट द एनर्जी यूनिट इन न्यूटन एंड मीटर. इसमें एक नाम भी आ गया और एक SI यूनिट भी आ गई. न्यूटन मीटर से भी लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट इट डाउन इन द कंप्लीट SI फॉर्म, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2. सो इन ऑल 3 वेज यू कैन राइट डाउन दिस वैल्यू. ठीक है, सेम वे here also there are units with the SI units with their special names. Like for instance magnetic moment हो गया, उसको joules per Tesla. यहाँ पे you are using it joule also and Tesla also. ठीक है, both are the special name, and then you can represent them in their base unit, meter square, ampere. ठीक है, सेम वे टॉर्क को यू कैन राइट इट डाउन न्यूटन इनटू मीटर. ठीक है, दैट इज़ अ स्पेशल नेम, एंड देन यू आर यूजिंग मीटर, बट यू कैन राइट इट डाउन इनटू योर बेस यूनिट्स. सो ऑल दोस यूनिट्स, surface tension न्यूटन पर मीटर. So you can use the special name, and this way also you can represent. So this way also you can represent special name plus their some SI unit this way, plus you can write it down in the complete fundamental in their complete base units. Like for instance here, if you see this electric flux, so coulomb per meter square, so specific heat. So these all things when we are going to study the dimension analysis जब देखेंगे ना, so हम लोग एक whatever it's been, what is the meaning of this, इसका सबका मीनिंग देख लेंगे और एक सिग्निफिकेंस देख लेंगे. अभी बस इसको बताने का ये है मतलब है कि एनी यूनिट यू कैन राइट इट डाउन. कैसे, किस तरीके से लिख सकते हैं. सो फॉर इंस्टेंस एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ जूल सेकेंड. ठीक है, जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इट डाउन इनटू द फंडामेंटल. यहाँ पे आपने जूल सेकेंड का मतलब नाम के साथ भी लिख दिया, और आपने उसमें एक बेस यूनिट भी है, एंड देयर इज़ अ नेम ऑल्सो हेयर, बट यू कैन राइट इट डाउन इन द कंप्लीट बेस यूनिट्स. सो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस अपेंडिसेस. ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है कि अबाउट दिस अपेंडिक्स, व्हाट इज़ देयर इन दिस अपेंडिक्स. नाउ वी विल गो टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखते हैं. सो लेंथ के मेजर करने के हमारे एक तो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, कि इनडायरेक्ट मेथड होते हैं. ठीक है, डायरेक्ट मेथड हमारे जो दे रखे हैं, इट्स बिन गिवन थ्रू द मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड द स्क्रू गेज. मीटर स्केल में सपोज दिस इज़ योर मीटर स्केल. मीटर स्केल में हमारे जितना भी हम मेजरमेंट करते हैं, हमें देखना पड़ता है हम सबसे छोटी यूनिट कौन सी मेजर कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी कॉल द लीस्ट काउंट और द रिजोल्यूशन, कि सबसे छोटा हम लोग अपनी नेकेड आई से क्या देख सकते हैं. तो मीटर स्केल में हम सबसे छोटा जो देख सकते हैं दैट इज़ 1 mm. तो अगर इससे छोटा होगा वी कैन नॉट एबल टू मेजर. हम लोग इससे छोटा वी कुड नॉट एबल टू मेजर. सपोज यहाँ पे अगर मेरे को, सो
यहाँ पे अगर मेरे को ये वाली क्वांटिटी है इन दोनों के बीच में, सो आई कुड नॉट एबल टू मेजर इट, आई हैव टू टेक द अप्रॉक्सीमेशन कि इन दोनों के बीच में है, सो इट विल बी द वैल्यू समवेयर 0.5 मैं ले लूँगा इसमें, ठीक है। सो इन अगर बीच में कोई वैल्यू आ रही है मेरी, आई हैव टू टेक द अप्रॉक्सीमेशन। अगर मेरी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आई कैन ओनली गिव द रेजोल्यूशन बिटवीन दीज टू, दिस इज माई लीस्ट काउंट, तो दिस इज माई लीस्ट काउंट, इतना मैं देख सकता हूँ, और द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल इज़ 1 mm, ठीक है। आई कैन राइट इट डाउन कि अगर मेरी कोई यूनिट मेरी यहाँ पे आ रही है तो आई कैन राइट, अगर मैं यहाँ पे आ रही है आई कैन राइट इट डाउन 1.25 और इट कैन ओनली गिव अप टू 1.2, ठीक है, उससे ज़्यादा और 1.3। सो दैट इज़ व्हाट द मेजरमेंट इट इज़ गोइंग टू गिव इफ़ आई एम गोइंग टू टेक द यूनिट बिटवीन हेयर एंड हेयर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर मैं ले रहा हूँ, ओके। सो दैट इज़ व्हाट द मीटर स्केल। सो इसको और रेजोल्यूशन करना है, अगर मेरे को इसके बीच की भी यूनिट बतानी है, सपोज मेरे को यहाँ की यूनिट बतानी है क्या है, अगर मेरे को और करना है इसको रेजोल्यूशन, तो आई यूज़ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का फंडा क्या होता है, वर्नियर स्केल में वी यूज़ टू पैरेलल स्केल्स, ठीक है। सपोज एक पैरेलल स्केल मेरा ये है, दिस पैरेलल स्केल, दिस इज़ माई मीटर स्केल, ठीक है। सपोज हेयर ही इफ़ यू सी के हेयर, यहाँ पे देखते हैं, अगर ये मेरा मीटर स्केल है, 2 पैरेलल स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है, और उन दोनों में सपोज एक ये है मेरा पैरेलल स्केल, उसका जो मिनिमम मेरा रेजोल्यूशन है, सपोज दिस इज़ माय रेजोल्यूशन x, ठीक है, और जो दूसरा मेरा स्केल है वो मेरा ये है, उसका रेजोल्यूशन मेरा y है। अब इन दोनों में आप लीस्ट कितना मेजर कर सकते हो, इसका मीटर स्केल से, अगर ये स्केल है इसका मैं लीस्ट कितना मेजर कर सकता हूँ, इससे x, नीचे वाले से कितना लीस्ट मेजर कर सकता हूँ मैं y, ठीक है। तो इसका अगर आप देखो तो इसका मिनिमम कितना मैं लीस्ट मेजर कर सकता हूँ, आई कैन मेजर x माइनस वाई, ये वाला मैं मेजर कर सकता हूँ ना मिनिमम, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्नियर स्केल के डिफरेंसेस ऑफ टू स्केल पैरेलल स्केल, वी कैन मेजर द लेसर अमाउंट ऑफ लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी क्या है, मेरा लीस्ट काउंट यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, बट उससे भी छोटा x माइनस वाई, आई कैन मेजर इट थ्रू द डिफरेंसेस इन देम। सो दैट इज़ व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग ऑफ द वर्नियर स्केल ऑल्सो, वेयर वी यूज 2 स्केल्स, वन इज़ मेन स्केल, वन इज़ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो मेरा होता है दैट इज़ विद द लेसर, उसका जो डिविजन्स होते हैं वो छोटे होते हैं, उसके डिवीजन जो होते हैं दैट इज़ अ स्मॉल डिवीजन देन द मीटर स्केल। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं मीटर स्केल देखूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज़ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 डिवीजन हो गए। अब जो मेरे जो वर्नियर स्केल है उसके 10 डिवीजन जो होंगे, ये मेरे 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के आ रहे हैं, वो उसके 9 में ही ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इसके 9 में ही आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो लास्ट वाला ये जो डिवीजन है, इसमें जो 10, इसमें जो सपोज इसके जो 10 है, लाइक इसके जो ये 10 डिवीजन हो गए, सो दिस 10 इट इज़ नथिंग बट कमिंग इन द 9 डिवीजन ऑफ आवर मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक जो डिवीजन है दैट इज़ 0.1 खिसका हुआ होगा लेफ्ट में, ठीक है, ये वाला भी 0.1, ये इधर लेफ्ट में 0.1 हर एक लेफ्ट में खिसकेगा, तभी ये टोटल 10 डिवीजन ये 1 mm में खिसक जाएंगे हर एक। जब मेरे 10 डिवीजन जो होंगे ना, इसके ये 10 है ना मेरे, अगर हर कोई 0.1 खिसका होगा, सो दैट मीन्स कि अगर मैं ये वाला देखूँ कि ये वाला इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट होगा, सपोज ये मेरा ये मेरा मेन स्केल हो गया और ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया, तो इन दोनों के बीच ये कितना होगा, 0.1 खिसका होगा इधर, ठीक है। अब मेरे को ये वाला अगर मेरे को मेजरमेंट लेनी है, ठीक है, मेजरमेंट लेनी है सपोज मेरे को, और इफ़ माई 1 इज़ गेटिंग ओवरलैप, सो अगर मेरा 1 जो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का ओवरलैप कर गया, सो डैट मीन्स ये वाला 0 थोड़ा आगे घूम गया, तो ये कितनी मेजरमेंट आ जाएगी, 0.1, यही वाला जो इनका डिफरेंस आएगा। सो डिफरेंस इज द लीस्ट काउंट इन आवर वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो ये जो मेरा डिवीजन है, ये मेरा मेन स्केल हो गया, ये मेरा वर्नियर स्केल हो गया, इन दोनों का डिवीजन ही मेरा लीस्ट काउंट मेजर करेगा ना। सो सपोज ये लीस्ट काउंट कितना मेजर करेगा, ये मेजर करेगा, अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं ये इसको आगे कर दूँ थोड़ा सा, सपोज इफ़ आई मूव दिस पॉइंट हेयर, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मेजर कर लेगा, ये वाला मेजर कर लेगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसको मूव कर दूँ इधर टू टाइम्स, ये यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 0.1 मेजर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको मूव कर दूँ, अगर ये मेरा ये दोनों ओवरलैप कर गए, ये वाला और ये वाला ओवरलैप कर गया, सो दैट मीन्स ये यहाँ पे आ गया, सो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सो ये वाला मेजर कर लेगा, ये वाला मेजर कर लेगा, ये कितना मेजर करेगा, 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट काउंट 0.1। सपोज ये मेरा यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मूव कर गया, ये दोनों मूव कर गए, ये वाला मेरा इधर मूव कर गया, दिस इज़ नाउ ओवरलैपिंग। सो ये वाला, ये कितना डिवीजन है मेरा, 5 टाइम्स इंटू 0.1, सो 0.5। सो दैट वे, सो दैट मीन्स के यहाँ पे इट इज़ मेजरिंग 0.5। सो जैसे जैसे मेरा ये मीटर्स के ये मेरा आगे मूव करता जाएगा, सो उतना ही, सो बेसिकली मेरा जो मेजरमेंट आएगा दैट इज़ ऑन द बेसिस के कितना ओवरलैप कर रहा है। सपोज
जिस जिस पॉइंट पे मेरा ओवरलैप करेगा, सो इसका मिनिमम जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट, जो मिनिमम मेरा लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.1, ठीक है, मिनिमम लीस्ट काउंट 0.1 है। और जितना ओवरलैप कर देगा विल सी के अगर ये 2.2 टाइम्स ओवरलैप इसके सेकंड पे ओवरलैप कर रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट इट इज़ व्हाट द मेजरमेंट इसके बाद की, ठीक है, इसके बाद की ये इतनी है। 3 के बाद कर रहा है तो 3 टाइम्स ऑफ माई लीस्ट काउंट, 3 टाइम्स ऑफ माई लीस्ट काउंट। सो दैट इज़ हाउ यू विल मेजर द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द वर्नियर स्केल। सो वर्नियर स्केल का एक तो हमारा सिंपल ये वाला वर्नियर स्केल है जहाँ पे मेरे वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ स्मॉलर देन मेन स्केल डिवीजन। हमारे को कभी कभार होता है वर्नियर स्केल डिवीजन इज़ ग्रेटर देन मेन स्केल डिवीजन भी दिया जाता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए वी हैव टू गो थ्रू द फंडामेंटल ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू डू द मेजरिंग। सो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन माई जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है 300 लेक्चर सीरीज, उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वी हैव डन अ होल 1.5 hour lectures on vernier scale division and screw gauge. If you wanted to go deep into it, if you wanted to learn, go there and check this thing कि अगर vernier scale division बड़े हो जाए main scale division से, तब उस केस में you cannot apply this logic of measuring it through it, ठीक है। सो यहाँ पे अगर measuring कर तो हम लोग अभी हम restrict कर रहे हैं because through the NCERT only, so even in that also I'm explaining a lot, but हम अभी NCERT में ही strict कर रहे हैं अपने आप को, तो इसलिए I'm going to take the basic thing only कि my vernier scale division is less than my main scale division। तो उसके अंदर अगर मेरा जो फार्मूला लगता है वो क्या फार्मूला लगता है कि जो मेरी ये वाला पॉइंट के, सो उसके अंदर जो फार्मूला लगता है वो होता है मेरा जो मेन स्केल रीडिंग हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू ओवरलैप किस पे कर रहा है, सो दैट इज़ व्हाट माय रीडिंग, ये मेरी रीडिंग होती है इसमें, ठीक है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं रीडिंग का, देन विल मूव ऑन। सो सपोज दिस इज़ माय मीटर स्केल, ये मेरा मीटर स्केल है, दिस इज़ माय मीटर स्केल एंड दिस इज़ माय वर्नियर स्केल, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ यू सी के दिस इज़ 20, 21, 22, ठीक है, ये इट इज़ कमिंग समवेयर बियॉन्ड दिस 22, ठीक है। एंड नाउ इफ़ यू सी के इट इज़ ओवरलैपिंग ऑन द 6, ठीक है, इट इज़ ओवरलैपिंग ऑन द 6 एंड इसका लीस्ट काउंट इफ़ इट्स 0.1 इंटू 6 और ये 22 प्लस 22, सो वी आर गेटिंग 22 प्लस 0.6, 22.6 इज़ द मेजर वैल्यू। सो हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। एक और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा और एनलार्ज व्यू है, इसमें और समझ में आएगा। सो इसका 3, 3.1, 3.2, 3.3, सो यहाँ पे 3.3 हो गया प्लस अब इसका ये वाला और मेरे को मेजर करना है ना, ये वाला पॉइंट, ये कितना होगा कि ये कितना होगा मेरा लीस्ट काउंट इंटू माय जो डिवीजन मेरा ओवरलैप कर रहा है, कौन सा डिवीजन मेरा ओवरलैप कर रहा है, इफ़ यू सी 1, 2, 3 दिस डिवीजन इज ओवरलैपिंग दिस, सो ये कौन सा है वर्नियर स्केल का 4 टाइम्स इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर लीस्ट काउंट। सो 4 टाइम्स इंटू लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.1, अगर लीस्ट काउंट है तो 0.4 हो गया और ये मेरा था 3.3 प्लस 0.04 वह 3.1, 3.123, सो 3.3 तो मेरा वो आ गया। और इसके अंदर भी मीटर और इसके अंदर भी 1 mm के अंदर भी हमने 10 डिविजन्स का रखे हैं ना 1 mm के अंदर भी, सो ये वाला कौन सा आ गया 0.04। सो इसके अंदर हमारे को अगर मेरा लीस्ट काउंट यहाँ पे दे रखा है 0.01 अगर लीस्ट काउंट है, सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है। 4th डिवीजन मेरा ओवरलैप कर रहा है, सो लीस्ट काउंट इंटू माई लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज़ ओवरलैपिंग। एक्चुअली ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इफ़ यू वांटेड टू लर्न, अदरवाइज वी कुड नॉट एबल टू कवर अप आवर लेक्चर, अदरवाइज इफ़ यू वांटेड टू लर्न यू कैन गो एंड चेक दोस वीडियोज़ ना, ठीक है। सो सेम अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वी आर गोइंग टू सी, काफ़ी कवर अप करना है, वी सी द स्क्रू गेज देख लेते हैं। स्क्रू गेज भी क्या होता है कि मीटर, यहाँ पे मेरा जो मीटर स्केल होता है दैट उसका लीस्ट काउंट कितना होता है मेरा 1 mm, वर्नियर का कितना होता है 0. इसका होता है 1 mm, वर्नियर स्केल का होता है मेरा वर्नियर स्केल का 0.1 mm और मेरा इसका आपका सॉरी ये हाँ 1 mm इसका हो गया मेरा मीटर स्केल का, वर्नियर स्केल का 0.1 mm हो गया और स्क्रू गेज का हो गया 0.01 mm, ठीक है। तो ये मेरा और फर्दर उसको जो वर्नियर स्केल में हम लोग ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख पाते हैं ना कि कितना है, इसके अंदर हम लोग और फर्दर हम लोग और जूम इन करके देख सकते हैं इन द
इन द स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का इस तरीके का होता है स्क्रू गेज। तो इन दोनों के बीच में वी जस्ट पुट इट अक्रॉस। इसके अंदर क्या होता है, मेरे एक के सेंट्रल लाइन मेन स्केल होता है और एक में ये रोटेटिंग सर्कुलर स्केल होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ के हमने देखा होगा ना, स्टेयर केस अगर मेरे ऐसे जा रहे होते हैं स्टेयर केस, ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप पूरा राउंड ले लो तो आप ये कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करोगे, तो उसके बेसिस पे होता है। सपोज़ मैंने पूरा राउंड कितने मीटर का है, सपोज दिस फुल राउंड इज़ 100 मीटर, और 100 मीटर में आप कितना मूव कर रहे हैं, आप 10 मीटर मूव कर रहे हैं। तो इन दिस केस आपकी पिच कितनी आ गई, पिच इज़ योर 10/100, ठीक है। सो दैट मीन्स आप जब देन योर पिच कम्स आउट टू बी कि जितना आप टोटल इसमें सपोज यू आर हैविंग 100 मीटर में यू आर मूविंग 10 मीटर अप, ठीक है। जैसे सर्कुलर स्केल्स होते हैं ना, जो मेरी स्टेयर्स होती हैं, आप इसमें 10 मीटर और ये 100 मीटर मूव करने के बाद, तो यहाँ पे 1 मीटर में आप कितना कितना मिनिमम रेस कर रहे हैं 1 मीटर में, तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मूव कर रहे हैं आप, ठीक है। सो दैट वे यू कैन दैट इज़ व्हाट द मिनिमम यू आर मूविंग इन, दैट इज़ व्हाट यू आर मूविंग। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ पिच। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी आर हैविंग द स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के अंदर क्या होता है, ये मेरे सर्कुलर स्केल होते हैं, ये मेरे लीनियर स्केल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेरा जो डिवीजन होता है दैट इज़ डिवीजन इज़ 0.5 mm का यहाँ पे होता है, जो बेसिक केसेस में होता है। आई एम नॉट टेकिंग द क्वेश्चंस जिसके अंदर यू विल बी हैविंग द वेरिएशन। जो बेसिक होता है, जैसे यहाँ पे 0.5 mm का मेरा होता है मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरे जो 50 जब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ ना, जिसमें यहाँ पे डिवीजन दे रखे हैं 50, तो 1 डिवीजन में कितना ये मूव कर रहा है इसका मेन स्केल का डिवीजन। तो दैट इज़ व्हाट माई 1 रोटेशन ऑफ माई सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल में कितना मूवमेंट हो रहा है मेरा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पिच। 1 रोटेशन में कितना लीनियर स्केल मूव कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पिच। अब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा कि वन डिवीजन में जो मेरा लीनियर स्केल पे डिवीजन है, उसमें मेरा कितना लीनियर स्केल मूव कर रहा है। सपोज़ यहाँ पे क्या है मेरा कि 50 डिवीजन जो मेरे ये जो मेरे 50 डिवीजन है यहाँ पे मेरे इस पे सर्कुलर स्केल पे, ये मेरा मूव कर रहे हैं 0.5 mm, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम है मेरा, ये जो मेन स्केल पे 0.5 है, ठीक है। तो 50 डिवीजन में मेरे 0.5 mm मूव कर रहा है। तो 1 डिवीजन में कितना मूव करेगा मेरा, 0.5 डिवाइड बाई 50, इट विल गिव मी द वैल्यू 1/100। सो 1/100, सो 0.01 mm। सो एक डिवीजन में इतना मेजर कर रहा है ये इसका लीनियर स्केल। सो दैट इज़ व्हाट द लीस्ट काउंट ऑफ इट, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन आप सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले हमने वर्नियर स्केल में करी थी, कि पहले हम इसका मेन स्केल रीडिंग देखेंगे, प्लस जो मेरे सर्कुलर स्केल में जो रीडिंग आएगी उसको मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज़ व्हाट। सो यहाँ पे हमारा मेन स्केल में रीडिंग कितनी है, 20, 21, सो 20, 21, 22, ठीक है। ये 0.5 है ना, 20.5, 20, सो 20.1 है ये, सो 20.05, 20.1 ऐसे है ये, 10, सो 0.05 के डिवीजन है। तो ये 20.1, 20.2, सो 20.1 नहीं, सो 21, 22, सो ये 20.5 ये है, सो ये 21 है। सो 21, दिस इज़ 22, सो 22 प्लस कितना डिवीजन, कितने उस पर आ रहा है ये मेरा 30, 31, 32, 33, 33 पे, ठीक है। 33 इंटू, और जो इसकी मेरी जो लीस्ट काउंट है 0.01, तो 0.33, सो 22 point plus 0.33, 22.33 is my reading. So that is how you have to do the reading. But anyways, we have not covered in detail. If you wanted to know in detail, I really urge you to go and check my that dedicated video on screw gauge and वर्नियर कैलिपर। वहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देख रखे हैं, एंड वेयर वी हैव गॉन एंड इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पिच, हाउ वी कैलकुलेट द पिच थ्रू द क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत रनिंग में दे रखा था, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। सो वर्नियर कैलिपर है, यहाँ पे क्या है आपका 10⁻⁻4 मीटर तक की एक्यूरेसी है। स्क्रू गेज की 10⁻⁵ तक की एक्यूरेसी है, एंड मीटर स्केल की 10⁻³ से 10⁻² इज़ द एक्यूरेसी ऑफ आवर
मीटर स्केल. सो ये दीज आर द डायरेक्ट मेथड थ्रू विच यू डू. ठीक है, अगर आपको प्लैनेट का डिस्टेंस चाहिए और द नियर बाय स्टार का डिस्टेंस चाहिए, देन हाउ यू आर गोइंग टू मेजर दैट. if you need to know the planet distance and all, you cannot use this direct method scaling जो आपके पास meter scales and all. For that you need another method which is called a parallax method. ठीक है, parallax method. अब parallax देख लेते हैं एक बार. Suppose easy way अगर आपको देखना है तो it is nothing but a apparent change in position with respect to background. तो अगर आप अपनी फिंगर, अपनी एक आई क्लोज करेंगे और आप देखेंगे अपनी राइट फिंगर से, तो जो हम आप अपनी राइट आई से देखो अपनी फिंगर को एक का क्लोज करके, एंड देन यू क्लोज दैट राइट आई एंड ओपन योर लेफ्ट फिंगर, तो यू विल सी द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन. सो दैट इज़ व्हाट द कॉल्ड द पैरेलैक्स. जब आप एक डायरेक्शन से देखते हैं इस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, तो आपको कुछ, और आप दूसरी बैकग्राउंड दूसरे डायरेक्शन से देखेंगे तो देर इज़ अ अपरेंट शिफ्ट इन दैट. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ पैरेलैक्स. तो उसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. सपोज फॉर इंस्टेंस यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार हेयर, ऐसे जा रहे हैं और ये मेरा एक ट्री आपके सामने ऐसे पड़ रहा है, आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और दिस इज़ माई माउंटेन एट द बैक. ठीक है, ये मेरा दिस इज़ द माउंटेन एट द बैक. जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये ट्री इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, जब आपको ट्री दिखेगा यहाँ से, ये लाइन ऑफ साइट होगी ना, आपको यहाँ पे दिखेगा. फिर आप यहाँ पे मूव कर गए, आपको ये यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, आपको ये जो ट्री है वो यहाँ पे दिखेगा. देखा आपने अपरेंट यहाँ पे पोजीशन कितनी चेंज हो गई. आपने you have seen the tree from this position. Now the tree looks to you at this position. If you see it from A, now the tree looks to you at this position. So this is what we call a apparent change in position. और जो एंगल बनाता है इन दोनों के बीच में, this is called a parallatic angle. So यहाँ पे हमने देखा कि जब आपने इस डायरेक्शन से देखा, आपको ये ट्री यहाँ पे दिख रहा है माउंटेन के. ठीक है, और आपने अब जब इस डायरेक्शन में देखा तो आपको ट्री यहाँ पे दिख रहा है माउंटेन के. सो दिस शिफ्ट जो भी होगा इसका, दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलैटिक एंगल. ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को लगा के वी यूज़ दिस कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंसेस. लाइक अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस देखना है, या अर्थ और स्टार के बीच में डिस्टेंस देखना है, दैट वी यूज़ दिस सेम कॉन्सेप्ट. वो क्या देखते हैं हम, सपोज़ अर्थ से अगर मेरे को किसी नियर बाय स्टार का, ये मेरा नियर बाय स्टार है, इसका डिस्टेंस चाहिए मेरे को, कितना होगा वो. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी. सपोज फ्रॉम द अर्थ इज़ इन जनवरी, यहाँ पे अर्थ. ठीक है, दिस इज़ योर सन, दिस इज अर्थ. इन द जनवरी इट इज़ एट दिस लोकेशन. ठीक है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ठीक है, जनवरी में वो इस लोकेशन पे, यू सी दिस नियर बाय स्टार एंड यू सी सम फार अवे स्टार पे आप देखते हैं. सो एंगल बनता है ये आपका ए. ठीक है, दिस एंगल यू कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राउंड. सेक्सेंट वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट, और एनी अदर सोफिस्टिकेटेड आप लैंड पे यू कैन ईजिली कैलकुलेट फ्रॉम एनी अदर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस. ये एंगल आपके सामने आ जाएगा फ्रॉम द नियर बाय स्टार. ठीक है, नियर बाय स्टार और जो फार अवे स्टार के बीच में. तो ठीक है, तो आप ऐसे जब देखेंगे तो आपको फार अवे स्टार यहाँ पे दिखेगा और नियर बाय स्टार आपको ये दिखेगा, ये ऐसे, और फार अवे स्टार आपको ये दिखेगा. ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, 6 महीने बाद आपकी पोजीशन यहाँ पे हो गई. जुलाई में आप यहाँ पे आ गए सन के. नाउ अगेन यू विल सी दिस नियर बाय स्टार. आपने फिर यहाँ से नियर बाय स्टार को देखा, एंड अगेन यू सी द नियर बाय स्टार देखा, और अगेन यू सी द फार्दर स्टार. अब जो दूर वाला स्टार है वो उसकी वो पोजीशन सेम रहेगी. ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट जो नियर बाय स्टार है उसकी आपको पोजीशन चेंज हो गई. यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे था इस जो आपका फार अवे स्टार था, अब नाउ दिस नियर बाय स्टार इज़ इन लेफ्ट साइड ऑफ द फार अवे स्टार. सो नाउ यू अगेन सी दिस एंगल कम्स आउट टू बी बी, एंड दिस एंगल कम्स आउट टू बी ए. जो अब पैरेलैटिक एंगल आ गया है, कितना आ गया आपका, A+B. सो A+B आपका ये पैरेलैटिक एंगल आ गया. यू कैन राइट इट डाउन, A+B, आप इसको थीटा लिख दो. नाउ दिस इज माई थीटा पैरेलैटिक एंगल. नाउ दिस इज माई डिस्टेंस दैट यू हैव टू कैलकुलेट, दिस इज S. नाउ यू टेक इट, दिस S is very much bigger than this D distance. S is very much bigger than this D distance, ये जो आपका है. ठीक है, in that case this theta is very small. तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सो व्हाट वी विल डू, विल टेक दिस, विल कंसीडर दिस एज अ कर्व. ठीक है, इसको कर्व की तरह ले लेते हैं. तो अब कर्व में हम लोग वो प्लेन एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ व्हाट, थीटा इज इक्वल टू योर आर्क कितनी है मेरा, D. ठीक है, तो मैंने इसको, ये आर्क की जगह मैंने आई हैव टेकन इट D, बिकॉज दोनों के भी ये इतना बड़ा है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. या तो मैं ये डायमीटर ले लूँ, या मैं इसका ये पूरा ये वाला आर्क ले लूँ. सो इट विल नॉट बी अ मच ऑफ अ डिफरेंस. सो व्हाट विल टेक द डायमीटर. सो यहाँ पे थीटा क्या आ गया मेरा, थीटा जो मेरा होता है दैट इज़ आर्क कितनी है मेरी B, मैं डायमीटर ले लेता हूँ D डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस नियर बाय स्टार का S. सो मेरे को S चाहिए, आई विल डू D डिवाइडेड बाय थीटा.
ठीक है. सो थीटा आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार द वे स्टार और दिस स्टार के बीच में ये ए थीटा मेरा कितना हो गया ए प्लस बी जो मेरा एंगल होता है. ठीक है. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ डी मुझे ऑलरेडी पता है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सन, एंड यू कैन कैलकुलेट थीटा आपने लैंड से कैलकुलेट कर लिया, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नियर बाय स्टार्स. ठीक है. So here it has been written parallax method में it's been told कि if you hold a pencil in front of you, if you that is the change in the pencil's position, if you are going to see it with your left eye and with you are going to see with your right eye, so that distance जो आपका जो apparent change in position आ रहा है, that is what because of the parallax and 2 point of observation के बीच का जो distance होता है. So these are my 2 point of observation. इन दोनों के बीच के distance को we call it basis. और जो ये एंगल आता है वी कॉल इट अ पैरेलिटिक एंगल. ठीक है. सो पैरेलैक्स देख लिया हमने, बेसिस देख लिया. नाउ दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन हेयर, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम 2 laboratories after. So to measure the distance d for a far away planet, so parallax angle we can observe. So this is again if it's a far away planet we can do it from the earth पे ही itself you can measure it with 2 laboratories. एक इस laboratory पे, एक B laboratory पे you can measure the place of this planet. So from here also you can see this parallatic angle. ये base आपको पता ही होगा कि 2 laboratory के बीच का distance, and you can easily calculate this distance. ठीक है. You can easily calculate. So that is what it's been written here. ठीक है. So as the planet is quite far away, B is very much, so theta is very small, then we can approximate AB as the arc that we have seen. Okay, we take the perpendicular distance as an arc because of this relationship. Because my this length is this जो theta होता है that is very small. ये जो theta होगा that is very small, बहुत छोटा theta होता है. तो we can consider ये arc भी and इसका जो diameter होता है we can consider both as same. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट होता है पैरेलैक्स का. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स. नाउ पैरेलैक्स के ऊपर ही कुछ एक क्वेश्चन है दैट विल सी एंड देन विल रैप इट अप. सो पैरेलैक्स के ऊपर हमारा सपोज पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वन मोर एप्लीकेशन ऑफ दिस इज़ टू फाइंड द एंगुलर डायमीटर. अगर मेरे को मून का एंगुलर डायमीटर चाहिए तो अर्थ से मैं क्या करूँगा, आई मेजर इट, एक ये वाले डिस्टेंस से देखूंगा और अर्थ से ही मैं दूसरा इसका डायमीटर चेक करूँगा. दिस एंगल इज़ माई पैरेलिटिक एंगल. ठीक है. नाउ व्हाट विल डू, थीटा इज़ नथिंग बट माई डी बाई एस. ठीक है. और मेरे को डायमीटर चाहिए, एस इज इक्वल टू माई डी बाई थीटा कर दूंगा मैं, आई विल गेट द डायमीटर. ठीक है. So here theta is my d by s and this will take it here, so d comes out to be equal to s theta. ठीक है. So now we'll see these questions. पहला क्वेश्चन पहले में हमारे को दे रखा है कि पहले में we are going to convert एंगल जो होता है हमारा, we are converting the angle डिग्री, 1 डिग्री को we are converting into radian, then 1 minute को converting into radian and 1 second को we are converting into radian. तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. ठीक है. पाई रेडियन होता है. 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180. ठीक है. ये 1 डिग्री आ गया मेरा वैल्यू मेरी रेडियन में. ठीक है. और मेरा 60 डिग्री जो होता है मेरा, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं 1 डिग्री में. तो 1 मिनट में कितने हो गए, 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60. तो मैं इस वैल्यू को अगर मैं इंटू 1/60 कर दूंगा, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 मिनट. ठीक है. और मेरे 1 मिनट में आई हैव गॉट 60 सेकेंड्स. ठीक है. नाउ 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, जो ये वाली जो वैल्यू आई है इसको फर्दर आई विल डिवाइडेड बाय 60. सो पाई बाय 180 इंटू 1/60 इंटू 1/60 आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई 1 second. So that is what it's been done here. 1 degree is by pi by 180. So you have got this 1.745 into 10 to the power minus 2 radian. Same way, 1 degree is having 60 minute. 1 degree is having 60 minutes. So 1 minute comes out to be equal to, you divide 1 degree by 60, and 1 minute is having 60 second. So 1 second you divide by 1 minute by 60 and you will get this value 4.85 into 10 to the power minus 6 radian. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मैन है, पहले वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है यहाँ से ए पॉइंट से. ठीक है. फिर वो इसके परपेंडिकुलर 100 मीटर मूव करता है, फिर सेम ऑब्जेक्ट को देखता है. ठीक है. और एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो दोनों ये जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से देख रहा है, सो हेयर ऑल्सो द
इट इज़ अ पैरेलिटिक एंगल जो इसका बन रहा है, दैट इज़ अ 40 डिग्री पैरेलिटिक एंगल बन रहा है, ठीक है। सो नाउ थ्रू द ज्योमेट्री वी कैन सी कि यहाँ से जब ये देख रहा है तो इसके ये सपोज ये दिस इज़ माई फार अवे ऑब्जेक्ट, तो दिस इज़ डायरेक्टली ऑन द लाइन ऑफ दिस, फिर यहाँ से देख रहा है, सो देन ये जो इसको इस पॉइंट से जब ये देख रहा होगा, सो ये डिस्टेंस जस्ट अ सेकेंड, just read this. A man wishes to estimate the distance. If he walks perpendicular 100 meter, look at the OC again. So distance O. ठीक है. So again this distance it is for the far away. He is looking again. So पहले ये यहाँ से देखता है इसको. It is directly in line with this डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है. फिर ये 100 मीटर दूर जाता है, देन अगेन इट इज़ लुकिंग एट दिस एंड अगेन इट इज़ लुकिंग एट अ डिस्टेंस. तो जो एंगल दिखता है इसको पैरेललिटिक एंगल, दैट कम्स आउट टू बी 6 थीटा. सो नाउ दिस थीटा इज़ नथिंग बट द पैरेललिटिक एंगल दिस थीटा, ठीक है. ये कैलकुलेट इसने ये इसको दिखता है थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस थीटा. नाउ दिस थीटा इज़ नोन टू यू, इट इज़ 40 डिग्री. सो दिस थीटा इज़ नोन. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस कि ये वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजिशन. मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए. मेरे को थीटा पता है, दिस इज़ माई 100, सो आई कैन अप्लाई 10 थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एक्स. एक्स आ गया मेरा 100 डिवाइडेड बाई 10 थीटा. 10 थीटा 40 डिग्री. यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है. ये मून है और इसको अर्थ से 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के अर्थ यहाँ से और यहाँ से इस मून को ऑब्जर्व किया है, ठीक है. सो अगेन वही पैरेलैक्स वाला फॉर्मूला लगेगा. सो जो ये दे रखा है मेरे को 1 डिग्री 54 सेकेंड दे रखे हैं, ठीक है. एंड द डायमीटर ये मेरे को दे रखा है d. तो यू कैन अप्लाई द सेम. थीटा इज नथिंग बट इज योर d डिवाइडेड बाई s. यू हैव टू फाइंड आउट s. तो d डिवाइडेड बाई थीटा. थीटा आपको निकालना है, d मेरे को दे रखा है, थीटा आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ योर रेडियन, ठीक है. रेडियन में निकालना है. ये कितना हो गया 60, 1 डिग्री में 60 सेकेंड, 60 मिनट्स प्लस 54, सो 104 मिनट्स हो गए. 104 मिनट्स आपने यू हैव टू टेक इट आउट इन रेडियंस. तो हमने यहाँ पे देखा था 104 इंटू पाई बाई 80, ये 1 डिग्री हो गया, डिवाइड बाई 1/60, 1 मिनट हो गया. सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू. दिस इज़ माई वैल्यू इन रेडियन थीटा, ठीक है. आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर. ये मेरे को दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है. सो दिस वी नो ना, दिस इज़ माई अर्थ. इसके 2 डायमेट्रिकली अपोजिट, ये मेरा मून है. कैलकुलेट हेयर एंड हेयर इस पॉइंट से. दिस इज़ माई एंगल थीटा, पैरेललिटिक एंगल. दिस इज माई डी. सो थीटा इज़ नथिंग बट d डिवाइडेड बाई s. s इज इक्वल टू d डिवाइड बाई थीटा. थीटा मैंने कैलकुलेट कर लिया, d की वैल्यू मेरे पास है. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ और माई डिस्टेंस फ्रॉम द मून. नेक्स्ट है मेरा एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन्स एंगुलर डायमीटर. सपोज सन इज़ देयर है, इसका एंगुलर डायमीटर ये दिस वन इट इज़ बीन गिवन this is 1920 मिनट, सॉरी सेकेंड, डबल डॉट्स हैं. तो ये मेरे को दे रखा है सन का एंगुलर डायमीटर, ये दे रखा है 1920 सेकेंड्स दे रखे हैं, ठीक है. इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में. इसको कन्वर्ट कर लो आप रेडियन में. सेकेंड्स को रेडियन में यू मल्टीप्लाइड बाय 4.85 इंटू 10⁻⁻6. तो ये मेरा रेडियन आ गया. नाउ यू हैव गॉट द रेडियन. व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन. सो डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, दिस इज़ डायमीटर. दिस यू नो द डिस्टेंस आपको पता है. सो थीटा इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई s. s आपको पता है, यू जस्ट टेक द s हेयर. d इज इक्वल टू s इंटू थीटा. थीटा आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, 1920 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6. इससे आपका रेडियन में थीटा आ गया. s आपको पता है, s आपको दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर diameter of the sun, ठीक है. So that's how you apply the parallax formula to measure the cosmological distances, ठीक है. So that's all for today. अभी थोड़ा ये है कि I could have explained the vernier caliper and screw gauge a lot more, क्योंकि ये दोनों वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज until unless you do the questions और थोड़ा और मैं जब तक नहीं बताऊँगा ना कि इसको और थोड़ा खोल के, जैसे मैंने अपने मेन लेक्चर्स में बताया हुआ, जब तक वो नहीं बताऊँगा, इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि इतने कम टाइम पीरियड में आई कुड हैव डन द जस्टिस विद यू. सो अगर आपको देखना है सीरियसली, गो एंड चेक माई लेक्चर्स ऑन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. वहाँ पे इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे हमारा को रनिंग थ्रू में दे रखा था. सो दैट्स वाई
we are focusing on NCERT, that's why I have rushed through this topic, but I've tried to explain the basic principle behind the वर्नियर कैलिपर कि क्यों होता है और स्क्रू गेज के अंदर कि व्हाट इज़ दिस पिच एंड ऑल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा लेक्चर यही था कि वी हैव सीन कि मेजरमेंट क्या होती है। पहले हमने देखा कि फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स को हमारे को प्रिसाइज चीज़ें चाहिए। हम लोग वेग टर्म्स में फ़िज़िक्स में बात नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से कि छोटा है, बड़ा है, गर्म है, ठंडा है। वी नीड एन प्रिसाइज आंसर्स, न्यूमेरिक आंसर चाहिए होते हैं। उसके लिए क्या करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है। मेजरमेंट के लिए टेक्निक चाहिए होती है। मेजरमेंट के लिए एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट से यू हैव टू कंपेयर इट, ठीक है। मेजरमेंट इज़ ऑल अबाउट द कंपेयरिंग प्रोसेस। तो स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना, फिर यूनिट्स को फिर डिफाइन करना है हर, और हमारे को सेकंड चीज़ डिफाइन करनी है व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कह लेंगे, जो नहीं मेजर कर सकते नहीं कर सकते। आप इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, सबके लिए यूनिट में नहीं डाल सकता। तो क्या है, फिजिक्स की एक ब्यूटी है कि सारी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। उन सातों की मैंने यूनिट्स डिफाइन कर दी, दैट वी कॉल अ बेस यूनिट्स, एंड देन उनसे ही सारी मैंने डिराइव्ड यूनिट्स निकाल ली। यूनिट्स मैंने देखी कि स्पेशल नेम्स के साथ भी होती हैं, SI यूनिट्स के साथ भी। आप SI यूनिट पे भी डाल दो, और जो भी डिराइव्ड यूनिट होती हैं या तो वो नेम के साथ होंगी या उसको SI यूनिट्स में डाल दो, या नेम और SI यूनिट्स का मिक्सचर में डाल दो। तो इन सारी तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट द यूनिट्स। फिर हमने देखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मीटर स्केल देखा। जो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 1 mm इट कैन मेजर मिनिमम। सेम वे वर्नियर कैलिपर जो होता है मेरा 0.1 mm तक मेजर कर सकता है, और जो मेरा स्क्रू गेज है दैट इट कैन मेजर 0.1 mm तक मेजर कर सकता है जो मेरा स्क्रू गेज है, ठीक है। सो और इनका हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, दैट वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज दैट इज़ विद द डिफरेंस ऑफ 2 स्केल्स वी कैलकुलेट द वैल्यू। वर्नियर कैलिपर का तो स्पेशली यही है, विद द डिफरेंस ऑफ 2 स्केल वी कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, एंड फ्रॉम देयर वी कैलकुलेट द वैल्यू बिटवीन द 1 mm और 2 mm के बीच में, जो 2 mm के बीच में जो मेरा गैप होता है जो मीटर स्केल नहीं कर पाता। फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू थ्रू वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज जो होता है वेयर वी यूज़ 1 सर्कुलर स्केल एंड वन हॉरिजॉन्टल स्केल, ठीक है। फ्रॉम हेयर वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पिच टू कैलकुलेट टू गेट अ प्रिसाइज मेजरमेंट अप टू 0.01 mm। फिर हमने देखा लंबे डिस्टेंसेस के लिए, फॉर द कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंसेस लाइक अर्थ से सन का, अर्थ से नियर बाय स्टार का, फॉर दैट पर्पस वी यूज़ द मेथड ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स इज़ नथिंग बट एपरेंट शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। सो वी यूज़ दिस मेथड ऑफ पैरेलैक्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही देखेंगे, फिर फॉर सम स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंड देन वी विल डू, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद एरर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। फिर मेजरमेंट हमारा टाइम है, मेजरमेंट मास है, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी है NCERT में। मेजर देखते हैं, अगर हम लोग कवर अप कर लेंगे देन विल स्टार्ट विद बेसिक एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड एरर्स हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल राइट, थैंक यू।